Hello everyone, good morning. Our last chapter is over. I will give you question answer of that chapter. Now the next part of science, or we can say that our next chapter is cell, the cell. This is your second chapter of science. We will discuss this chapter, isn't it? Now see this cell. First of all, remember who discovered this cell. Cell was first of all discovered by Robert Hooke in 1665, isn't it? First of all, the cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Now, what basically the cell is, isn't it? You know, every organism is made up of this cell. You know very well this is. But what is this cell, isn't it? What are the constituent or what are the constituent material present in cell, isn't it? This is our task. So cell is the smallest unit of all living organism, whatever the plant, whatever the animal, all containing the cell, isn't it? So this cell is nothing but a tiny portion of the organism, a tiny part of the organism, tiniest, isn't it? Cell may be small or maybe big, isn't it? Depending upon the structure and function, they are of different type. So cell is nothing but the structural and functional unit of all living organism, whatever the plant, animal, or all living beings, whatever we can say the unicellular or a multicellular organism. Cell is the smallest functional and structural unit of all living beings, isn't it? Let's see this cell. This cell, if you want to understand the cell, just see one house is there. Suppose this is a house. This is a house. Now this house is made up of small bricks, isn't it? This house wall is made up of small bricks. This, if we say what is the structural and functional unit of this house, we can say this brick, isn't it? This brick are the smallest portion or the structural and the functional unit of this house. Same as in our body, if an organism is there, its structural and functional unit is nothing but cell. Whole part of the body is made up of this cell, small tiny part that is called the cell, isn't it? मतलब जैसे किसी मकान में एक छोटी सी ब्रिक उसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, पूरा बॉडी के पार्ट्स बनाने में हेल्प करती है, द वॉल और द रूफ वट एवर प्रेजेंट इन द हाउस, वैसे ही बॉडी में छोटे छोटे सेल मिलकर शरीर, या कह सकते हो it will make the body of an organism, isn't it? So this is the smallest unit. This is the smallest unit of organism which makes body, isn't it? अब इससे पहले कुछ एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग। सबसे छोटी जो होती है अगर कहा जाए दैट इज़ द सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर स्मॉलेस्ट पोर्शन देखा जाए दैट इज़ द सेल। सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, isn't it? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जिससे क्या होती है पूरी बॉडी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई सा भी छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। सबके बॉडी में ये सेल पाए जाते हैं। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी अलग अलग साइज़ होती है, isn't it? डिपेंड करता है वो ऑर्गेनिज्म पे, isn't it? तो सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन ग्रुप,
तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू. टिश्यू मेक्स organ. Organ makes organ system. Organ system makes organism. इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए. सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. मतलब कहा जाए इस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सबसे छोटी जो यूनिट है वो है सेल. समझ में आए बात? इन सेल से मिलकर पूरी बॉडी बनी है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गन हो, कोई सा भी पार्ट हो, वट एवर द पार्ट, वट एवर द ऑर्गन present in our body is constituting the cell, isn't it? And I already told you cell was discovered by Robert Hooke in 1665. ये बात आपको याद होनी चाहिए. सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, isn't it? इससे पहले जो फर्स्ट डिस्कवर्ड की थी सेल की वो थे एंटन वॉन लेवेनहॉक साइंटिस्ट. उन्होंने जो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करके जो सेल का पता लगाया था वो थे एंटन वॉन लेवेनहॉक, isn't it? बट ऑफिशियली अगर कहा जाए हु इज़ कंसिडर्ड एज अ डिस्कवरर ऑफ सेल? रॉबर्ट हुक, isn't it? इतनी बात समझ में आई सभी को? नाउ सी द नेक्स्ट पोर्शन. नाउ द टेक्स्ट बुक. All organism from the tiniest to the mightiest, छोटे से बड़ा, all are made up of cell. All are made up of cell. What is more, every organism start life as cell. The single cell from which an individual develops, divide and divides, isn't it? These cells are continuously divide and redivide, and it makes growth and development of the body. Then this cell get differentiate into different types and form tissues, isn't it? I already gave you कि सेल से टिश्यू बनता है. यू मे रिमेंबर दैट व्हाट इज दिस टिश्यू. आपको पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है. मैं अभी बता चुका हूँ आपको. अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. द टिश्यू फॉर्म ऑर्गन. अब टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन. एंड स्लोली द इंडिविजुअल टेक शेप. उसी से शेप बनता है बॉडी का, isn't it? एन ऑर्गन जैसे हार्ट मान लो, लाइक हार्ट is a group of tissue. अब टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन. ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और ये सारे मिलकर क्या करते हैं? बॉडी के फंक्शंस करते हैं. जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुआ, आईज हुआ, isn't it? रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ. वॉट एवर द सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी, दिस आर बेसिकली कंस्टिट्यूटिंग द सेल, एंड दिस टुगेदर वर्क. दैट्स वाई आवर बॉडी परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ फंक्शन, isn't it? तो इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट. वाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल? बिकॉज हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो इस सेल की वजह से ही है. स्ट्रक्चर जो बना है हमारा वो सेल की वजह से बना है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है, isn't it? दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. नाउ द टाइनेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर. अगर कहा जाए देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब यूनिसेलुलर कौन होते हैं? जिनके बॉडी में एक ही सेल होता है और वो पूरी बॉडी फंक्शन करती है उस एक सेल पे ही. और मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं? जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं. जैसे एग्जांपल हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग. समझ में आई बात? तो बोथ दिस यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हैविंग सेल, isn't it? तो सबके बॉडी में जो होता है सेल इज द फंक्शनल यूनिट. इज इट क्लियर? ऑल द फंक्शन इज कैरिड आउट विद इन द सेल. Now our next part is the type of cell. अब टाइप्स ऑफ सेल देखिए आप. डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. वो सेल्स वेरी इन साइज, अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं, स्ट्रक्चर के होते हैं. दो मोस्ट सेल आर टू स्मॉल. कुछ सेल जो बहुत छोटे होते हैं, टू बी सीन बाय नेकेड आइस. कुछ को आप अपनी आंखों से देख सकते हो और कुछ को आप आँख से नहीं देख सकते. लाइक द एग्स ऑफ बर्ड. एग ऑफ बर्ड इज नथिंग बट सेल. इट इज़ अ सेल. द सेल ऑफ द फाइबर यील्डिंग प्लांट आर क्वाइट लार्ज. ये बड़े होते हैं, दिख जाते हैं. सम सेल्स आर रेक्टेंगुलर. इसका शेप, कुछ सेल्स का शेप होता है रेक्टेंगुलर, सम डिस्क शेप, एंड सम हैव हेयर लाइक ग्रोथ कमिंग आउट ऑफ देम. सम आर पॉलीगोनल, isn't it? तो डिफरेंट शेप्स आर ऑफ देयर ऑफ डिफरेंट सेल. इवन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल इज नॉट सेम. अभी अगर कहा जाए सेल जो होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे. उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. चलिए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से. जैसे अगर मैं कहूँ
cell, this is cell. The cell having outermost layer, this is called cell membrane. This is called cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कंस्टिट्यूट सेल मेम्ब्रेन, इजंट इट. अगर कहा जाए एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में अलग अलग टाइप की होती हैं. टाइप मीन्स अगर कहा जाए होती सेम ही है, बट प्लांट में सेल वॉल भी होती है, लेकिन एनिमल में सेल मेम्ब्रेन ही होती है. तो cell constituting the outermost layer, that is called the cell membrane, isn't it? Inside the cell there is a round circular body present within the center of the cell. This round body is nothing but nucleus. इसको क्या बोलते हैं? Nucleus. This nucleus is the central part of the cell and it was discovered by Robert Brown. इसको सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था. And this is the most important part of cell because all the activity of cell is controlled and regulated by this nucleus. जैसे कंप्यूटर का CPU होता है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, सेम एज हमारे बॉडी में ब्रेन होता है जो हमारे बॉडी के ऑल पार्ट को कंट्रोल करता है. सेम सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे सेल को कंट्रोल और रेगुलेट करता है. तो न्यूक्लियस इज द सेंट्रल फॉरमोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इजंट इट. अब इस न्यूक्लियस के पास भी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, पर इसके ऊपर भी अगर एक मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इज इट क्लियर? अगर न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे. इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल. क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल. इसी के अंदर डीएनए और जीन्स पाए जाते हैं, इजंट इट? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि सेल जो है, सेल इज़ नथिंग बट अ सिंगल पार्ट इट कंस्टिट्यूटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज. अगर कहा जाए इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं? ऑर्गेनेलिज मीन्स व्हाट? द पार्ट ऑफ द सेल विच प्रेजेंट विद इन द सेल. अब इस सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन. ये एक सेल से दूसरे सेल को डिवाइड करती है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन का काम भी करती है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल का भी काम करती है. कोई सा भी मटेरियल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो जाता है वो इसी के थ्रू होते जाता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स भी होते हैं, छोटे छोटे पोर. ठीक है. अब मैं बोलूँ आपको कि दिस सेल कंटेन अ जेली लाइक मटेरियल विद इन द सेल मेम्ब्रेन. उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म. ये जो साइटोप्लाज्म होता है इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द सेल, इजंट इट? इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं. कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती है? इसके आसपास अगर देखा जाए न्यूक्लियस के आसपास ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. इसी पे कुछ सर्कुलर बॉडीज होती हैं जिनको बोला जाता है राइबोसोम. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म. राइबोसोम. इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. इनको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. ये जो होती है प्रोटीन फैक्ट्री होती है. ये सारा चीज़ आपको डिस्कस करूँगा एक एक करके आगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा जब. अभी चल रहा है बट मैं अभी आपको पहले पार्ट्स तो बता दूँ. तो दिस आर द राइबोसोम. इनको सेल का प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं. इसके अंदर एक अगर कहा जाए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज वन मोर ऑर्गेनेली. ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पावर हाउस. जैसे हमारे घरों में पावर हाउस होता है जहाँ से बिजली मिलती है हमको, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडिंग. सेम एज ये जो है ये पावर हाउस है इस पूरे सेल का, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे पार्ट को, सेल को, इजंट इट? साथ ही साथ इसमें गोल्जी बॉडी, सर्कुलर गोल्जी बॉडी पाई जाती है. इनका सिक्रीशन का काम होता है. लाइसोसोम पाए जाते हैं, पेरिक्सोसोम पाए जाते हैं और मैनी मोर ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट इन दिस, इजंट इट?
तो सेल कंस्टिट्यूटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इजंट इट। तो सारा का सारा मटेरियल सेल के अंदर होता है और ये सारे मिलकर फंक्शन करते हैं अंदर सेल के अंदर, दैट ऑल वर्क्स टुगेदर एंड परफॉर्म फंक्शन। ये तो एक सेल हुआ, ऐसे हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ये सारे मिलकर काम करते हैं तो हमारे बॉडी फंक्शन और वर्क करती है। इतनी बात समझ में आई सभी को? तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या होता है देखिए आप लोग, सबसे पहले माइक्रोस्कोप को समझिए क्योंकि ये आपको बताएगा यहाँ पे कि कैसे सेल को ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप। सबसे पहले माइक्रोस्कोप देखिए आप, दिस इज़ द आई पीस, दिस इज़ द एडजस्टमेंट स्ट्रोक या नॉब, ये ट्यूब होता है माइक्रोस्कोप का, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं स्टेज जहाँ पे स्पेसिमेन रखा जाता है, दिस इज़ द लेंस या मिरर विच इज़ प्रोवाइडिंग द लाइट टू द स्पेसिमेन। दिस माइक्रोस्कोप इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके अंडर ही आप किसी भी सेल को देख सकते हैं, isn't it? तो दिस माइक्रोस्कोप was first discovered by Anton von Leeuwenhoek, isn't it? तो these microscopes are using to observe cell, isn't it? Because cell cannot be seen by naked eyes. For viewing this cell, we need microscope, isn't it? So observing cell under microscope. Now see, perhaps you remember that convex lens can be used to produce enlarged image of object. Convex lens से हम क्या देख सकते हैं? बड़ी इमेज। A microscope uses the magnification produced by two lens. इसमें दो लेंस होती है, एक तो आई लेंस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। The lens that is close to specimen, अब स्पेसिमेन क्या है? यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे रखा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं आई पीस। देखिए लिखा हुआ है, the lens that is close to the specimen placed on the stage is called objective. Usually there are two objective capable of different degree of magnification. The lens through which you see is called eyepiece. ये मैं बता चुका हूँ। The image produced by object act as object for the eyepiece which magnify it further. और ये क्या होती है? इमेज यहाँ पे जो बनती है वो मैग्नीफाई होकर यहाँ पे हमको दिखती है। इतना समझ में आया आपको? Microscope is the instrument by with the help of this we can view or we can observe cell, isn't it? We can see the parts of cell. So microscope is that instrument. Now next part is the staining and mounting we will discuss in next class. Is it clear? Now one more thing is that I will give you question answer of previous chapter, so you just write your question answer in your copies, isn't it? I will give you the answer also. Now thank you.